This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute, recording another session for you, which is very typical in case because I just saw the letter and you can see if something like this comes in exam, what's gonna happen. Like we would be all shattered because though we try our level best to do everything possible when we are from Dr. BKM, but still having such a big letter and when you are allowed यार ये to मोदी वालों से बात कर ली है कि वो जो ब्रेकअप होना वो अगर आज difficult. So it's just about you are allowed to write only 180 to 200 words. And considering that 200 words and having a letter like this is a huge problem. So what we do, so now I will tell you the most important things and please mute your microphones. It would be good. Okay. So please do not do anything with your microphones now. I have muted everybody. So what I'm saying is that if a letter like this comes, we will be all shattered because having this big letter and we are allowed to write only 180 to 200 words and having this much data. So that is where I say OET is the easiest thing to be done because you just need to notice one thing. Write a referral letter to Mrs. Prabha, Srishti Nursing Home Care Agency, Sydney, requesting a home visit to provide instructions on the self-monitoring of blood glucose levels and administering insulin injections following Mrs. Ram Murthy's discharge. So that is what is exactly the point. That is what makes it the easiest of the jobs. That the major thing that you have to do that you are writing to a home care agency that's gonna visit to the patient's home and provide instructions on blood glucose level. So this is the first thing we need to write BGL. That is first thing that you need to write, and the second thing is insulin injection. So these are the only two things we need to write about this patient. That is basically about the diabetes. Again, the second most important thing which I always tell you, second most important thing is to whom we are writing the letter. Oh, sorry, after knowing to whom we are writing the letter is to know what has been given in the discharge plan. So after going to the discharge plan, we come across, अब हम यहाँ से टिक मार्क करेंगे हमें कौन से पॉइंट्स चाहिए इस बेसिस पे, ब्लड ग्लूकोज लेवल के और इंसुलिन के बेसिस पे, और उसको घर पे विजिट करना है. एडवर्स ट्रेनस एक्टिविटी हाँ और ना दोनों, मतलब आप इंक्लूड कर भी सकते हो, आप नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी है, क्योंकि रिलेटेड होता है समहाउ. एडवाइस टू लूज वेट ना, नॉर्मल डायबिटिक डाइट एंड लो फैट डाइट यस, रिक्वेस्ट मोर इन्फॉर्मेशन सिंपल रेसिपीज की दैट कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड एट होम. होम विजिट है तो थोड़ा सा रेसिपी के बारे में भी बता देंगे. अगेन अभी तक कोई भी मेजर पॉइंट नहीं आया, आप इनमें से कोई भी पॉइंट मिस कर सकते हो. अभी तक कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आया जो मैंडेटरी है, ये भी मिस कर सकते हो, ये भी मिस कर सकते हो, क्योंकि आपको लगेगा वो डायबिटिक पेशेंट है उसका वेट लूज करना बड़ा जरूरी है. लेकिन जो होम केयर एजेंसी है उसको सिर्फ दो काम करने हैं. एक, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो अब तक पेशेंट बाहर हॉस्पिटल में जाके क्लिनिक में जाके ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करता था अपने आप करना है, और इंसुलिन इंजेक्शन को अपने आप एडमिनिस्टर करना है. इसके अलावा कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है. यानी अब मेरा डाटा सिलेक्शन अपने आप इजी हो जाता है. ये इंपॉर्टेंट है. चार्ट बनाना इंपॉर्टेंट है. मॉनिटरिंग ऑफ फास्टिंग पोस्ट पेंडियल ब्लड शुगर इंपॉर्टेंट है. ये इंपॉर्टेंट नहीं है. हस्बैंड एडवाइस टू इफ देयर इज हाई ग्रेड फीवर, ये आप लिख सकते हो, बट अगेन नॉट इंपॉर्टेंट. होम केयर एजेंसी को कोई मतलब नहीं है कि हस्बैंड को बता दिए. ये तो हमने इंस्ट्रक्शन दिया हस्बैंड को कि अगर कुछ होता है तुम बता देना फटाफट. तो होम केयर एजेंसी को बताने की जरूरत नहीं है, उनको तो सिर्फ ग्लूकोज और इंसुलिन से करना है. यानी अभी तक इस लेटर में और रिक्वेस्ट होम विजिट फॉर डेमोस्ट्रेशन, तो ये एक पॉइंट है, डेमोस्ट्रेशन के लिए हस्बैंड को भेजा है. तो मतलब कहने का मतलब अभी तक 1, 2 और 3, इसके अलावा कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है. सो दिस इज हाउ द डाटा सिलेक्शन इज डन. आई होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड. यस सर. एक्सक्यूज मी सर, सर इसमें जो डाइट का है वो भी बताएंगे? वो डाइटिशियन का काम नहीं होगा सिंपल रेसिपीज बताना या कुछ डाइट के बारे में ज्यादा? And that is what I am exactly telling you, Sonia ma'am. ऐसे तो सब कुछ जरूरी है, but then again it will disturb the whole scenario of the letter. That is what we are talking about. That is what I am exactly telling you. That is where OET plays its role. क्योंकि अगर आप ये सब बातें लिखोगे तो आराम से 200 वर्ड से ऊपर चले जाओगे. अगर इनमें से मुझे कोई भी बात इंपॉर्टेंट लगेगी तो मैं लास्ट में प्लीज नोट करके लिख दूंगा. डू यू अंडरस्टैंड कि मेरे पास एक ऑप्शन ये भी तो ना, प्लीज नोट दैट शी हैज गेन्ड लॉट ऑफ वेट, सो शी हैज बीन एडवाइज्ड टू लूज वेट and you are requested to
टेल दिस एंड दिस थिंग टू द पेशेंट, अगर मैं फंस गया तो। लेकिन मेरे लेटर में जब मुझे बड़े आसानी से बिल्कुल सिंपल दे रखा है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल की सेल्फ मॉनिटरिंग, उसमें भी कुछ ज्यादा नहीं है, सेल्फ मॉनिटरिंग करनी सिखानी है पेशेंट को, इसलिए घर जाके सिखा रहे हैं। तो इस होम केयर एजेंसी का काम ये बड़ी बड़ी चीजें बताना नहीं है, उसका काम मैक्सिमम ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन इंजेक्शन बताना है, हस्बैंड को डेमोस्ट्रेशन देना है ताकि अगर वो फेल हो जाए तो हस्बैंड साथ हो, और उसको चार्ट करनी है अपनी ग्लूकोज को, मैक्सिमम लो फैट डाइट। फिर अगर आप लो फैट डाइट लिखोगे तो आपको लगेगा वेट लूज करना भी जरूरी है, फिर देन इट एवरीथिंग सीम्स लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज वेयर यू कैन सेव योर वर्ड्स विद योर स्मार्टनेस एंड विद योर कॉन्फिडेंस अपॉन योरसेल्फ कि मेरे को लेटर में क्या है। अब हम देखते हैं शुरू में लेटर। अब ये इट वुड बी वेरी इजी, आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा बिल्कुल भी अब इसको समझना लेटर को। सो आई विल मेक इट मच इजियर फॉर यू। अब देखना डाटा सिलेक्शन कितना आसान होता है जब आपका एक बार कॉन्फिडेंस बन गया सेल्फ मॉनिटरिंग वर्ड पे, तो इतना आसान हो जाएगा। देखना 87 kg वेट है, ये लिख सकते हो, ओबीज है ये लिख सकते हो, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन बता सकते हो, उसको एडवाइस मत दो लूज करने की क्योंकि ये हमें नहीं दिया, लेकिन हम उसकी कंडीशन तो बता सकते हैं ना कि ओबीज है ये है। लेकिन या फिर मेन बात ये बता सकते हैं उसका एड्रेस क्या है, एड्रेस बताना बहुत जरूरी है। तो इसको चाहे लास्ट में लिख दो हिज एड्रेस हैज बीन एनक्लोज्ड विद द लेटर, नहीं तो लास्ट में लिख दो प्लीज नोट हिज एड्रेस इज हाउस नंबर 648 ब्रोक स्ट्रीट सिडनी, ये लिख सकते हो। एडमिटेड हमारे पास 5 दिन के लिए हुआ था क्योंकि एक्यूट अपेंडिसाइटिस थी, इसके बारे में आप छोटा सा बता सकते हो इस कारण से एडमिट हुआ था, पर ये होम केयर एजेंसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको सिर्फ वो बताना है पेशेंट आईपीडी में था इन विच यू आर अ चार्ज नर्स, तो अभी तक भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आया। उसके बाद सेकंड पेज पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सेकंड पेज ये है सोशल बैकग्राउंड और इसका, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम देख लेते हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की आईवी एंटीबायोटिक से वो बस एक ही लाइन लिख देना, दिस पेशेंट वाज एडमिटेड ड्यू टू दिस एंड मैनेजमेंट वाज डन विद द एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। बिजनेस वुमेन है, ड्यू टू ट्रैवल वर्क लिव्स विद हर हस्बैंड, तो घूमती रहती है, टू मैरिड एल्डर डॉटर इन सिडनी अबाउट 3 आवर्स। अब देखो ये अब ऐसे तो सारी बातें इंपॉर्टेंट है ना, यही तो हम फंस जाते हैं ओईटी में कि फिर तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे को भी लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है तो मैं सब कुछ लेकिन लिख तो नहीं सकता ना, क्योंकि मेरा डाटा तो ऐसे 300 वर्ड्स पे पहुंच जाएगा, तो इनमें से मुझे स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा मैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखूं। हस्बैंड इज प्राइमरी केयर एल्डर डॉटर विजिट हस्बैंड 1 year scared of hospitalization prone to anxiety। अब देखो वो स्केर्ड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है, पेशेंट के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर जिसको मैं लेटर लिख रहा हूँ जिसको सिर्फ ग्लूकोज का उसको घर जाके बताना है, तो उसको हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको ये भी नहीं बताना चाहिए। रेयरली कुक्स एट होम, ये वो छोटी मोटी बातें बता सकते हो कि एक्सेसिव वेट है और बहुत कम एक्सरसाइज करती है और रेयरली कुक्स, इसको एक लाइन में लिख देंगे। डाइट में वो ये खाती है, पिज्जा वगैरह खाती है, ये अगेन अगेन डाइट को एक्सप्लेन करने की कोई बात नहीं होती। अगर नॉर्मल लेटर में डाइट जरूरी भी हो तब भी ये सब बातें नहीं लिखनी होती, वेफल्स पिज्जा, बस ये बताना होता है दैट शी इज वेरी केयरलेस अबाउट हर डाइट, दैट इवन दो शी इज डायबिटिक बट शी डज नॉट फॉलो डायबिटिक रेजिम। सो दिस इज हाउ द लेटर गोज। फिर उसके बाद नोन एज एसेंशियल हाइपरटेंशन डायबिटीज 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखो डायबिटीज मेलिटस टाइप 2, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट कंप्लाइंट विद द डायबिटिक मेडिकेशन। तो ये वाली बात होम केयर एजेंसी को पता होनी चाहिए कि उसको चार्ट करना है, तभी वो चार्ट वर्ड दे रखे हैं, क्योंकि वो कंप्लाइंट नहीं है तो वो चार्ट करेगी सेल्फ मॉनिटर करके, तो इसका मतलब वो डेली ध्यान रखेगी। हाइपरटेंशन इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है इस लेटर का, क्योंकि अगेन ग्लूकोज को सेल्फ एडमिनिस्टर और इंसुलिन को सेल्फ एडमिनिस्टर करना है, तो अगेन इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसमें एसेंशियल हाइपरटेंशन भी नहीं लिखोगे तो अगेन लेटर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यही आपको समझना है, यही तो हमें सीखना है इस ओईटी से। फिर उसके बाद मेन बता दिया डायबिटीज माइलेटस है, नॉन केस ऑफ, ये तो फर्स्ट पैराग्राफ में बताना है नॉन केस ऑफ डायबिटीज माइलेटस है, क्योंकि यही मेन रीजन है कि वो वहां पे जा रहे हैं, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ का डाटा है डायबिटीज माइलेटस, इसको मेडिकल हिस्ट्री में लिखने की बजाय फर्स्ट में लिखना है इस लेटर में। फिर उसके बाद रेडिएटिंग फीवर था, ये सब बातें ओवरऑल बताने की जरूरत नहीं है, बस वो तो हमने मैनेजमेंट में ठीक कर ही दिया पेशेंट को। ये भी पेलर पुलर इसको भी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओवरऑल मैनेजमेंट में ठीक कर दिया पेशेंट को, उसको मतलब सिर्फ ग्लूकोज से है। उसके बाद अब मेरे को लग रहा है डाटा शॉर्ट ना हो जाए तो मैं डाइट को इंक्लूड करना चाहता हूँ, लेकिन आगे देखते हैं कितना डाटा आता है। फिर ब्लड प्रेशर का डाटा आ रहा है तो मेरे को ये भी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू डू दैट। एब्डोमेन ये सीटी स्कैन किया, अपेंडिसाइटिस किया, इसमें भी कुछ नहीं चाहिए, ये मेरा सारा उसमें कवर हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स वगैरह का देके ठीक कर दिया, तो अभी तक मेरे को कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा इसमें। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, एब्डोमिनल ये भी नहीं है, कंप्लेंट्स ऑफ इंसोम्निया हेडेक ये भी नहीं है, टॉलरेटिंग सॉफ्ट डाइट कैन एम्बुलेट विद द असिस्टेंस ये भी नहीं है, डाइटिशियन ने रिव्यू किया था। अगर डाइट वाली बातें लिखूंगा तो प्लीज नोट वाली लास्ट लाइन में लिख दूंगा, नहीं तो अगर डाइट को सबको इंक्लूड करना है तो कर लूंगा, लेकिन अभी तक मेरे को कोई ऐसा वो नहीं मिला। पेशेंट इज स्टेबल एक्सेप्टिंग ओरली वेल, एडिक्वेट यूरिन आउटपुट, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। फिर अगेन असेसमेंट पेशेंट इज स्टेबल विद, ये भी कोई इंपॉर्टेंट, मतलब ये लिख देंगे छोटी छोटी बातें कि पेशेंट की कंडीशन ठीक हो गई है, हम वापस घर पे भेज रहे हैं। और डिस्चार्ज प्लान में सर चले गए।
साइलेंट कर लेना। अगर अब मैं इस पूरे लेटर को देखूं तो ये समझ आता है कि भाई हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं डाइट को और एक्सरसाइज को, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा मार्जिन है, लेकिन उसको इंक्लूड बहुत कम लेवल पे करना है क्योंकि 200 वर्ड्स आसानी से हो जाएंगे इस लेटर में। तो हाँ, जब मैं बाकी डाटा देखता हूँ तो अगर मैं सिर्फ उसका डाइट और उसका लिखता हूँ तो ये डाटा बहुत कम है उसको करने के लिए, इसलिए मेरे को थोड़ा सा मैं वो कर सकता हूँ इसको। ठीक है, इज इट ओके? एक सेकेंड, मैं नेक्स्ट पेज देखता हूँ। what is happening to it. तो नेक्स्ट पेज पे जब जाते हैं तो यहाँ पे ये छोटी छोटी बातें आ रही हैं। तो हाँ, इसमें जब मैं इतना अगर मैं बिल्कुल ही छोटा कर दूंगा तो वो ज्यादा गलत हो जाएगा, तो मेरे को इसमें थोड़ा सा डाइट और वेट का लिख दूंगा कि शी शुड बी एडवाइज टू लूज वेट, मतलब पर अगेन मेन फोकस मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल और इंसुलिन इंजेक्शन पे ही रहेगा। अगर बाय चांस मैं कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लिखता, पेपर खत्म कर चुका हूँ, 160 170 वर्ड्स हो रहे हैं, तो लास्ट पैराग्राफ एक अलग से बना दूंगा। उसको कैसे बनाऊंगा लास्ट पैराग्राफ को, जिसमें वो जो एक्स्ट्रा बातें लिखनी है उसको मैं इसको अलग से बना दूंगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड, ये मैं बना दूंगा फोर्थ पैराग्राफ। अगर मेरा लेटर ज्यादा ही छोटा हो गया ना तो मैं ये कह दूंगा इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फर्दर it is important to be noted that the patient is careless about her diet, so she should be advised to follow diabetic diet. Also, her weight is on higher side, उसका वेट थोड़े हायर साइड पे है, so she needs to be advised, या एडवाइज वर्ड यूज कर सकते हैं, कर चुके हैं तो सजेस्टेड टू लूज वेट एज वेल। तो लूज की स्पेलिंग ध्यान से लिखना है, लूज में हम डबल ओ डालते हैं तो वो गलत होता है, सिंगल ओ डालना है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो अब ये पॉइंट हमारा कवर हो गया। सो फर्दर इट इज इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड, ये लास्ट पैराग्राफ बना दो, असेसरी पैराग्राफ। अगर बाय चांस आपके वर्ड कम रह गए, केयरलेस अबाउट अ डाइट, सो शी शुड बी एडवाइज टू डाइट, तो पूरा लेटर एक सार में आ गया। ऑल्सो हर वेट इज ऑन हायर साइड, so she needs to be suggested to lose weight as well. So ये सारा cover हो गया। So this is how you can cover, so you can make a separate paragraph out of this और यहीं पे उसको लिखना तो and please visit her home and देखो अब ये छोटा सा इट्स लगाना और होम का एड्रेस, एंड इट्स एड्रेस इज, यानी कि होम एड्रेस इज हाउस नंबर 456 whatever has been given, ब्रुक स्ट्रीट, पूरा लिखना है और कैपिटल वर्ड्स सिडनी। बस इससे आपके वर्ड्स काउंट पूरे हो जाएंगे अगर आपके छोटे रह गए। अगर मैं देख लेता हूँ कितने वर्ड्स बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं 7 मानूं 50 वर्ड्स बन गए कितनी आसानी से। देखो फोर्थ पैराग्राफ पूरा हो गया, बाय चांस आपका छोटा भी रह गया। पर शुरू में एक्स्ट्रा मत इंक्लूड करो, बिकॉज यू माइट फील कोट अप कि यार मैंने शुरू कर दिया है एंड आई एम अनेबल टू फिनिश दैट, बिकॉज अब तो 250 वर्ड्स आ रहे हैं। क्योंकि अगर लास्ट वाली इंपॉर्टेंट चीजें आपने गायब कर दी है, खासकर विजिट्स लेटर में और डॉक्टर्स के साथ खासकर, क्योंकि विजिट लेटर डॉक्टर्स को तो ऑलमोस्ट 99% श्योर विजिट ही आना है या फिर डिस्चार्ज बैक आना है, विजिट आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो प्लीज ये समझना है कि अगर हमने पहली वाली विजिट्स को बड़ा कर दिया तो लास्ट वाली विजिट को छोटा करने के चक्कर में जो मेन विजिट है जिसके लिए हम रेफर कर रहे हैं वो छोटी हो जाती है। तो लास्ट विजिट को कभी छोटा नहीं कर सकते, इसलिए पहले जो भी कंजर्वेटिव थिंकिंग से करना है करो, बाद में ये कह सकते हो प्लीज नोट इट इज ऑल्सो, या इट इज इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड दैट ऑन फर्स्ट विजिट शी ऑल्सो डिस्प्लेड साइंस ऑफ दिस for which this was given, so kindly take care of it as well। तो वहां पे वो वर्ड काउंट हम पूरा कर देंगे। बाय चांस कुछ रह भी गया, सेकंड विजिट की कोई इंपॉर्टेंट बात रहेगी, सो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड दैट व्हेन शी प्रेजेंटेड फॉर द सेकंड टाइम शी हैड दिस एज वेल फॉर which this was recommended and now it is important to be followed up as well by you। तो मतलब वो उससे वो चीज पूरी हो जाएगी। बट प्लीज लास्ट विजिट की इंपॉर्टेंट बातें, टुडे विजिट की इंपॉर्टेंट बातें, इन द सेम वे इस लेटर की इंपॉर्टेंट बातें पहले लिखो। अगर बाय चांस हम छोटा सा रह जाता है डाइट वगैरह करना, लेकिन डोंट एक्सप्लेन पिज्जा खाती है कैसी व्हाटएवर द थिंग्स आर, यू नीड नॉट मेंशन एनी थिंग्स इन द मेडिकल लेटर एज सच।
So this is what is a simple thing about OET, and that is what makes OET an easy test. But when we get confused, when we try to write too much, that's where it becomes cumbersome, and that is where the problem lies. So if you will not think too much and if you will take it easy, it's gonna be easy. Is it all good? Everybody has understood? Yes, sir. And I have also recorded it for you so that you can listen to it multiple times. What I have done, but it's just about data selection that I wanted to tell you all.